ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਡਰਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ 7 ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਟਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, A is tall or short as B। ਇਹ ਟਰਮਸ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ A ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਏ A is tall ਜਾਂ short as B, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ A ਕੀ ਹੈ is equal to B ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ A ਤੇ B ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਜੀ, A is not as tall as B, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ A is not as tall as B, ਮਤਲਬ ਕਿ A ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ B ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ A ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ B ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ, A is not as short as B, ਮਤਲਬ ਕਿ A ਕੀ ਹੈ? B ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ, A is taller than B, means A ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੱਡਾ ਹੈ B ਤੋਂ। A is taller than B ਮਤਲਬ ਕਿ A ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਹੈ B ਤੋਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ, A is taller than only B, ਮਤਲਬ ਕਿ A B ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੀ, A ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ? B ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ B ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ B ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ 'ਚ B ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਜੀ 6ਵੀਂ ਟਰਮ ਦੇਖੋ, 6ਵਾਂ, A is shorter than B, A ਕੀ ਹੈ ਜੀ? shorter than B, ਮਤਲਬ ਕਿ A ਕੀ ਹੈ ਜੀ? B ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਜੀ, A is shorter than B, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ A ਕੀ ਹੈ? ਲੈਸ ਦੇਨ B, ਮਤਲਬ ਕਿ A ਓਨਲੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਤੋਂ? B ਤੋਂ, ਪਰ B ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। B ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ, B ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, 5 children were administered psychological test to know their intellectual level। 5 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨ ਏ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਦੈਟ ਦੀ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? A is less intelligent than B, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? A ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੈਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ? B ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ, the child C is less intelligent than child D, ਚਾਈਲਡ C ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੈਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਤੋਂ ਜੀ? ਚਾਈਲਡ D ਤੋਂ। ਅੱਗੇ, the child B is less intelligent than C, ਚਾਈਲਡ B ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੈਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਚਾਈਲਡ C ਤੋਂ। and child A is more intelligent than child E, then child A is more intelligent than child E। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ, which is the second most intelligent, second most intelligent ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ E ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, E ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ A is more intelligent than child E। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ E ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ E ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੈਸ ਦੇਨ A ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੈਸ ਦੇਨ A ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ A E ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। E ਲੈਸ ਦੇਨ E, ਹੁਣ A ਕੀ ਹੈ ਜੀ? A ਲੈਸ ਦੇਨ B ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? A ਲੈਸ ਦੇਨ B ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ B ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। B ਕੀ ਹੈ? B ਲੈਸ ਦੇਨ C ਹੈ। B ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੈਸ ਦੇਨ C ਹੈ।
अगे आप सी वाले ते चलते हैं जी। सी की है? लेस देन डी है। सी की है जी? लेस देन डी है। तो अपनी जो इक्वेशन बन गई वो इक्वेशन बनती है जी ए। इस की है जी ए जेड़ा अपना है ए है जी लीस्ट इंटैलीजेंट। लीस्ट इंटैलीजेंट मतलब कि सब तो घट इंटैलीजेंट जेड़ा अपना चिल्ड्रन है जी वो है ए ई। जेकर उन्हें सानू पूछा जी सैकेंड मोस्ट इंटैलीजेंट तो सैकेंड पॉइंट ते कौन है जी इत्थे? सी। 1 2 3 4 ते 5 ते सैकेंड मोस्ट इंटैलीजेंट अपना केड़ा चाइल्ड है जी? सैकेंड मोस्ट इंटैलीजेंट है जी सी। जेकर वो पूछ लवे जी विच चाइल्ड इज मोस्ट इंटैलीजेंट, जेकर आपां मोस्ट इंटैलीजेंट दी गल करिए, मोस्ट इंटैलीजेंट कौन होया जी? डी। क्योंकि सब तो पहला कौन है जी? डी। तो मोस्ट इंटैलीजेंट कौन होया जी? डी। सो इसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं जिस तुहानू थोड़ी जी हेल्प मिलूगी। वो एक नवे तरीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जी। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, हु इज शॉर्टर देन सुशील? नीजा इज टॉलर देन हैरी बट शॉर्टर देन हार्दिक। सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, हु इज द टॉलेस्ट? कहना की चाहते ने जी? रोशन की है जी वड्डा हार्दिक तो। हु इज टॉलर देन सुशील। सब तो पहला तो जी तुहानू इन्हां क्वेश्चनां च ये पता होना चाहिए हु ते अपना विच। हु ते विच इन्हां क्वेश्चनां च किस नू रिप्रेजेंट करदे ने। ते दूजी गल तुहानू पता होना चाहिए जी बट ते एंड इन्हां क्वेश्चनां च किस नू रिप्रेजेंट करदे ने। देखो जो किसी भी क्वेश्चन च रीजनिंग दे इहो जिहे क्वेश्चन च ऑर्डर एंड रैंकिंग च हु एंड विच रिप्रेजेंट किया गया होए तां ओ जी पास वाले या सैकेंड परसन नू, ठीक है जी, पास वाले जां फिर जां सैकेंड परसन नू रिप्रेजेंट करता है जी। किनू रिप्रेजेंट करता है जी? पास वाले या सैकेंड परसन नू रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ओदी जानकारी दिंदा है। बट किनू करता है जी? फर्स्ट परसन जां फिर दूर वाले दी, ठीक है जी, जां फिर दूर वाले परसन दी। मतलब कि जी क्वेश्चन समझने की गल है। देखो सब तो पहले सानू क्वेश्चन च दे की रखा आप नोट करना, ठीक है जी। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, मतलब कि रोशन की है जी हार्दिक तो बड़ा है। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। अगे वो कह रहे हैं हु इज शॉर्टर देन सुशील। हु इज शॉर्टर देन सुशील। हुण तुहानू दस्सिया सी जी हु किस नू रिप्रेजेंट करता है? सैकेंड परसन नू। क्वेश्चन च सैकेंड परसन कौन है जी? हार्दिक की है सैकेंड परसन। फर्स्ट पर्सन कौन है जी? रोशन, क्योंकि रोशन टॉलर है हार्दिक तो। हार्दिक कौन है? सेकंड पर्सन। हु इज शॉर्टर देन सुशील, मतलब कि फिर कौन होया जी शॉर्टर सुशील तो? सुशील तो शॉर्टर था, फिर हार्दिक होया ना जी, मतलब कि सुशील बड़ा होया, हार्दिक की हो गया जी? छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हु रिप्रेजेंट करता है जी पास वाले या सेकंड पर्सन। अगे चलते हैं जी। नीजा इज टॉलर देन हैरी। नीजा है जो वो टॉलर है जी हैरी तो, ठीक है जी। नीजा आप टॉलर बनाती की तो हैरी तो नीजा अपनी टॉलर होगी। उस तो बाद वो क्या कह रहा है? बट शॉर्टर देन हार्दिक, ठीक है जी। हुण किस नू रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन छोटा है जी? हार्दिक तो। हार्दिक तो छोटा कौन है जी? फर्स्ट पर्सन नू रिप्रेजेंट करता है बट, मतलब कि इस फर्स्ट पर्सन कौन है? नीजा। सेकंड पर्सन कौन है जी? हैरी, ठीक है जी। सेकंड पर्सन कौन है? हैरी। ते बट शॉर्टर देन हार्दिक ता कौन है जी? शॉर्टर देन हार्दिक, मतलब कि हार्दिक की है जी बड़ा है किस तो जी? नीजा तो, ठीक है जी। अगे आ जाओ। सुशील इज शॉर्टर देन रोशन। सुशील क्या है जी? शॉर्टर है रोशन तो, ठीक है जी। हुण देखो इन्हां दोवां तो आपां नूं की पता लग रहा है? इन्हां दो इक्वेशनां तो आपां नूं किहड़ी इक्वेशन दा पता लग रहा है? इन्हां दो इक्वेशनां तो आपां नूं पता लग रहा है जी हार्दिक। हार्दिक तो वड्डा कौन है जी? नीजा। नीजा तो वड्डा कौन है? ठीक है जी। नीजा तो वड्डी कौन है? हैरी, ठीक है जी। हैरी, क्योंकि दो ने ना जी हैरी। हुण आपां जी इक्वेशन बनाते हैं जी, इत्थों इक्वेशन की बनूगी? रोशन ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन, ठीक है जी, एच वाई। एच वाई मतलब कि हैरी, ठीक है जी।
हुण क्वेश्चन दी इक्वेशन अपनी ए बन गई। इस चो आपां ने की देखना है जी, हुण उन्हें पूछा जी टोलेस्ट कौन है, तो टोलेस्ट कौन है जी, रोशन है जी। रोशन की है जी अपना टोलेस्ट है, ठीक है जी। हुण चलते हैं आपां अगले क्वेश्चन वाल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो सारे ही क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो जी, प्रबीर रिमेंबर्स दैट हिज फादर बर्थडे इज बिटवीन 13th एंड 16th ऑफ मई। कहंदे प्रबीर नू पता है कि ओदे फादर दा जन्मदिन है जो वो 13 तो लैके 16 मई दे विचकार आंदा है। एग्जैक्टली ओनू नहीं पता। whereas his sister remembers that his father birthday is between 14th and 18th of May। उसदी सिस्टर ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦਾ ਬਰਥਡੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਉਹ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। on which date of May is their father's birthday। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਛੋਟੇਸਟ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, मतलब कि उन्होंने एग्जैक्टली नहीं पता, वो बिटवीन की गल कर रहे हैं। जेकर वो बिटवीन की गल कर रहे हैं मतलब कि प्रबीर कह रहा है भी जेड़े उहदे फादर का जन्मदिन है वो 13 तो लैके 16 मई के विचकार आंदा है, ठीक है जी। 13 तो लैके 16 मई के विचकार आंदा है। ते प्रबीर की सिस्टर कह रही है, प्रबीर की सिस्टर कह रही है कि जेड़ा उन्होंने फादर का बर्थडे आंदा है वो आंदा है जी 14 तो लैके 18 मई के विचकार, ठीक है जी। एग्जैक्टली दोवां नूं नहीं पता कि कदों आंदा है। जदों इहो जी गल इहो जे ओ आ जाण तां तुसीं जेड़ी तरीक्स गिवन ने, जेड़ी डेट्स गिवन ने वो छड्डणियां ने। मतलब कि प्रबीर नूं पता है कि 13 तो लैके 16 के विचकार आंदा है, मतलब कि आपां 13 नूं स्किप कर देना ते 16 नूं स्किप कर देना है। प्रबीर दी आपां लिख लेनी है जी जेड़ियां तरीकां बचदियां ने, किहड़ियां रह गईयां जी 14 ते 15, ठीक है जी। हुण ओदी सिस्टर नूं पता है 14 तो लैके 18 दे विचकार आंदा है, तां असीं 14 नूं छड्ड देना है जी ते 18 नूं छड्ड देना है। बाकी जो इन्हां दे विचकार पैंदे ने वो असीं लिख लेने ने। तां ओदी सिस्टर नूं पता है कि की आंदा है जी, सिस्टर नूं पता सी 14 तो 18, 14 छड्ड देना तां 15 हो गया जी, 15 16 17, ठीक है जी। सिस्टर दी तरीका ये आ गई, प्रबीर दी तरीका ये आ गई। इन्हां दोनों च आपां देखना है जी कॉमन केड़ा है। इन्हां दोनों च कॉमन केड़ा है जी 15th। 15th की है जी तुहाडा आंसर आ जाऊगा, मतलब कि 15th ऑफ मई है जो उन्हां दे फादर दा बर्थडे होगा। इस तरह के क्वेश्चन तुसी बहुत आसानी नाल सॉल्व करने ने। सब तो पहला तरीका की है जी, प्रबीर नूं पता सी भी 13 तो लैके 16 दे विचकार आंदा है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 13 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਉਸਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, बिटवीन च ये तरीका एप्लीकेबल होगा जी। अगे जी अगला देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है जी। द कोच अराइव्ड एट द प्लेग्राउंड एट 8:35, Rakesh arrived 45 minutes later and was 15 minutes late for the training। by how much time did the coach come early than the scheduled time। कहना की चाह रहे जी, कहते कोच है जो वो प्लेग्राउंड च 8:35 ते आ गया, रकेश कोच दे आण तो 45 मिनट लेट आया, 45 मिनट लेट आया तां जिस दे नाल वो 15 मिनट ट्रेनिंग तो लेट हो गया। बाय हाउ मच टाइम डिड दी कोच कम अर्ली दैन दी शेड्यूल। इसनूं आपां लंबे तरीके नाल ही करांगे, ठीक है जी। इस दे लॉन्ग मैथड नाल ही आपां इसनूं सॉल्व करांगे। सॉल्व करन दा सब तो पहला तरीका जी, सब तो स्टार्टिंग तो आपां चलना है। कोच किन्ने बजे आया जी 8:35 ते कोच आ गया, 8:35 ते कोच आ गया। रकेश कदों पहुंचा जी 45 मिनट लेट, 45 मिनट लेट पहुंचा, मतलब कि ये 45 मिनट जुड़ जाएंगे जी 8:35 च।
8:35 च जदों असी 45 मिनट जोड़े तो साडा टाइम बनता है जी 9:20 ते। मतलब कि 9:20 ते की है राकेश है जो वो रीच होया प्लेग्राउंड च। ठीक है जी, 9:20 ते राकेश प्लेग्राउंड च आया। ठीक है जी, पर वो 15 मिनट लेट हो गया। 9:20 ते जदों वो आया तो वो 15 मिनट लेट हो गया, मतलब कि 15 मिनट घटा दो, क्योंकि ये लेट होया ना, 15 मिनट लेट हो गया तो 15 मिनट घटा दो, मतलब कि 9:05। मतलब कि राकेश नू आना था 9:05 ते सी ग्राउंड च, पर वो आया किन्ने ते 9:20 ते। ठीक है जी, कोच किन्ने बजे आ गया सी? कोच आ गया सी जी 8:35 ते। ठीक है जी, राकेश किन्ने बजे, राकेश नू किन्ने बजे आना सी जी? राकेश नू आना सी 9:05 ते। ठीक है जी, हुण 8:35 ते कोच आ गया, राकेश नू 9:05 ते आना सी ताकि उहदा टाइम बराबर रहिंदा। ठीक है जी, हुण 8:35 चों 8:35 आ गया जी। ठीक है जी, हुण असीं 9:05 चों 8:35 नू की कर देंगे, माइनस कर देंगे, तां की आ गया जी 30 मिनट आ गया। मतलब कि साडा जिहड़ा कोच है वो किन्ने मिनट जल्दी आया जी? कोच किन्ने मिनट जल्दी आ गया जी? 30 मिनट कोच जल्दी आ गया। किवें जी? देखो कोच किन्ने बजे 8:35 ते आया, राकेश 45 मिनट लेट हो गया, तो मतलब कि 9:20 ते पहुंचा। 9:20 ते पहुंचा तो 15 मिनट लेट हो गया। जेकर असीं माइनस करिए 15 9:20 तो मतलब कि राकेश नू किन्ने बजे आना सी ग्राउंड? 9:05 ते। कोच किन्ने बजे आ गया? 8:35 ते। इनू माइनस किया तो कोच किन्नी जल्दी आ गया कोच? तो कोच जल्दी आया जी पूरे 30 मिनट। पूरे 30 मिनट जिहड़ा कोच है जी वो जल्दी आया प्लेग्राउंड च। अगे आपां क्वेश्चन करते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ने। A is 15th from the left hand and B is 6th from the right hand in a row of boys. If there are 3 boys between A and B, how many boys are there in a row? देखो जी, सब तो पहला तो कई स्टूडेंट्स की करनगे, इस 15th कर लेंगे, 15 + 6 + 3 बॉयज बैठे ने जी, तो साडा आंसर की आ जाऊगा इस 24 आ जाऊगा जी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज किन्ने आ जाएंगे जी? 24 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 15 + 6 21, 21 + 3 = 24। ठीक है जी, ये अपना केस पहला बनता है जिस च असीं डायरैक्ट जोड़ के देख लेंगे आ। ठीक है जी, डायरैक्ट जोड़ के आपां देख लिया, लेकिन इस च सानू किते भी क्लीयर नहीं किया गया कि ओवरलैप हो रहे ने स्टूडेंट जां ओवरलैप नहीं हो रहे। ठीक है जी, तो असीं देखना है जी केस सैकेंड। केस 1 तो यह होया असीं सीधा ही जोड़ लिया। केस सैकेंड अपना की हुंदा है जी? केस सैकेंड च जो भी सानू ए दी पोजीशन दित्ती है जी, ध्यान नाल तुसीं नोट करना है जी, केस सैकेंड नू ए दी पोजीशन ते बी दी पोजीशन नू आपां जोड़ लेना है। ए दी पोजीशन नू ते बी दी पोजीशन नू आपां जोड़ लेना है। ए दी पोजीशन है जी 15 + बी सॉरी हाँ जी, ए दी पोजीशन है जी 15, बी दी पोजीशन है जी 6, मतलब कि 21 हो गया जी अपना। ठीक है जी, उस तो बाद दोवें दे विचकार किन्ने बच्चे बैठे ने जी? ठीक है जी, दोवें दे विचकार जिन्ने बच्चे बैठे ने उन्हां च 2 जोड़ लेने ने। ठीक है जी, 2 क्यों जोड़ने ने? क्योंकि 2 बारी काउंट हुंदे ने, ये कंसैप्ट भी असीं क्लीयर करांगे। 2 जोड़ लेने ने ताकि हो गया जी 5 हो गया। ठीक है जी, हुण असीं की करना है जी, 15 + 6 चो माइनस कर देना 5, मतलब कि 21 - 5 = 16। ये अपने कोल वैल्यू आ गई जी। ठीक है जी, हुण अपने कोल वैल्यू पहला 24 भी आई सी जी, हुण अपने कोल वैल्यू की है 16 भी आ गई। हुण अपने कोल 2 आंसर बनते हैं, एक तो 16 बन रहा है जी, एक बन रहा है अपने कोल 24। तो सानू किवें पता लगूगा जी एग्जाम च केड़ा ठीक है? सब तो पहला तो असीं एग्जाम च देखना है जी अकॉर्डिंग टू आंसर। अकॉर्डिंग टू आंसर मतलब कि जे तो उन्हें 24 दिता होया असीं 24 मार्क कर देंगे, जे उन्हें 16 दिता होया असीं 16 मार्क कर देंगे। जो उन्हें दोवें दिते हुए ने तां असीं कांट डिटरमाइन दी पोजीशन उत्थे मेंशन कर देंगे। जेकर सानू एक आंसर दिता होया है 24 ਜਾਂ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? देखो जी, जो साडा आंसर आया सैकेंड केस च, जे ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ गई ਵੱਡੀ वैल्यू तो छोटा ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ दूजा केस फॉलो नहीं करूगा।
जेकर वो दिती गई वड्डी वैल्यू तो वड्डा आंदा है तां फॉलो करूगा। हुण देखो जी क्वेश्चन च दिती गई वड्डी वैल्यू केड़ी है जी, दिती गई वड्डी वैल्यू क्वेश्चन च है जी 15, दिती गई वड्डी वैल्यू क्वेश्चन च की है 15, अपना आंसर की आया 16। जेकर साडा उत्तर, बार बार मैं रिपीट कर रहा, जेकर साडा उत्तर दिती गई वड्डी वैल्यू तो छोटा आउंदा है तां दूजा केस फॉलो नहीं करता। लेकिन इत्थे की है जी दिती गई वड्डी वैल्यू 15 है, साडा आंसर कितना आ रहा है जी 16, तो इस केस च अपना दूजा केस फॉलो करता है। ठीक है जी, केस 1 का आपां पता ही है। केस सैकेंड जेकर सानू मतलब कि कुछ भी याद नहीं रखना तो केस सैकेंड को आपां किस तरह बना सकते हैं जी, a प्लस बी केस सैकेंड का जो फॉर्मूला असी बनाया जी, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी, जिन्ने स्टूडेंट्स विचकार बैठे होंगे प्लस 2। ठीक है जी, हुण जेकर असी ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाइए, जेकर असी इसनूं क्लीयर करके तुहानूं समझाइए इस क्वेश्चन नूं, तां इस क्वेश्चन च होया की है, देखो ओवरलैपिंग का केस असी लिया। जेकर असी लैफ्ट तो गिणदे आ तां ए किहड़ी पोजीशन ते बैठा है 15वीं ते लैफ्ट तो, जेकर असी राइट तो गिणदे आ तां बी किहड़ी पोजीशन ते बैठा है जी 6वीं ते। तीन स्टूडेंट्स की ने जी इन्हां दे विचकार बैठे ने। ठीक है जी, ओवरलैपिंग हो रही है तो असी सैकेंड वाला फॉर्मूला भी इस च ला के देखना है। ठीक है जी, सैकेंड वाला आपां ला के देखना है। हुण असी अगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन च असी दोवें केसां बारे गल करते हैं। हुण देखो जी आपां आ गए अगले क्वेश्चन ते। अगले क्वेश्चन च सब तो पहला तो असी केस 1 सब तो पहला आसान है जी, केस 1 असी पहला डिस्कस कर लेंगे। केस 1 च की कह रहे 6 प्लस 10 प्लस 8, 10 ते 8 18, 18 ते 6 किन्ने हो गए जी 24, मतलब कि एक आंसर तो अपना 24 ही बनता है। हुण असी दूजा केस, केस सैकेंड असी की मैं फॉर्मूला केस सैकेंड का असी दस्या सी a प्लस बी, ठीक है जी, की जी a प्लस बी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस 2। हुण देखो जी क्वेश्चन च ए किन्ना है जी 6, बी किन्ना है जी 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन्ने ने जी, किन्ने बच्चे विचकार बैठे ने 8 प्लस 2। ठीक है जी, ए आ गया जी 16 माइनस 10 किन्ना आ गया जी 6। एक आंसर अपना आ रहा है जी केस 1 तो 24, दूजा आंसर आ रहा है अपना केस 2 तो 6। हुण असीं किवें आइडेंटिफाई करांगे कि अपना केड़ा आंसर ठीक है जी, जो कि मैं तुहानूं केस बताया सी जी, जेकर तां अपना आंसर जे मैं पंजाबी च लिख भी दिंदा आ, जेकर, ठीक है जी, साडा उत्तर, ठीक है जी, जेकर साडा उत्तर दिती गई वड्डी वैल्यू तो, जेकर साडा उत्तर दिती गई वड्डी वैल्यू तो छोटा आउंदा है तां की है जी, तां सैकेंड केस रोंग है। ठीक है जी, हुण देखो जी दिती गई वड्डी वैल्यू असीं क्वेश्चन च देखना, क्वेश्चन च सब तो वड्डी वैल्यू की है जी 10, अपना आंसर कितना आया जी सैकेंड मैथड तो 6, मतलब कि अपना ए गलत है जी। आंसर क्यों गलत है, क्योंकि साडा उत्तर दिती गई वड्डी वैल्यू तो छोटा आ गया, तो सैकेंड केस रोंग है। असीं प्रैफर किस नूं करांगे, फर्स्ट नूं। जेकर एग्जाम च दोवें आंसर दे रखे ने तां कांट डिटरमाइंड दा केस इस च बन जाऊगा जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। हुण ये क्वेश्चन आपां डायरैक्ट करते हैं, इस च असीं कुछ नहीं समझते। ठीक है जी, पहला देखो फर्स्ट केस आपां इस च करते हैं, केस 1 जेकर असीं इस च करते हैं, देखो जी P is sitting 14th, Q is sitting 7, देयर आर किन्ने बॉयज ने जी, उन्हां दे विचकार 4, तां सीधा पहला आंसर कढ लिया आपां 25। ठीक है जी, दूजा जेकर आपां केस सैकेंड तो देखिए, केस सैकेंड का फॉर्मूला आपां ने की बनाया सी a प्लस बी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट जेडे बिटवीन बैठे ने। ठीक है जी, ये याद रखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस 2, 2 क्यों लाते हैं, क्योंकि ए ते बी नूं आपां 2 बारी गिणदे हैं जी। ठीक है जी, ए किन्ना है जी 14th प्लस बी किन्ना है जी 7,
माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट किन्ने ने जी 4 बैठे ने प्लस 2। तो अपना सेकंड केस तो आंसर किया रहा है 21 माइनस 6 दैट इज कमिंग आउट टू बी 15। 15 अपना आ रहा है जी, ठीक है जी। लेकिन अपने क्वेश्चन च सब तो वड्डी वैल्यू की है जी, क्वेश्चन च सब तो वड्डी वैल्यू की दी गई है जी। क्वेश्चन च तुसी देखो जी सब तो वड्डी वैल्यू की दी गई है 14 दी गई है जी क्वेश्चन च सब तो वड्डी वैल्यू। ते अपना आंसर कितना आ रहा है जी 15 आ रहा है। जेकर साडा उत्तर दित्ती गई वड्डी वैल्यू तो छोटा हुंदा है तां आंसर गलत हुंदा है, जेकर दित्ती गई वड्डी वैल्यू तो वड्डा आ जावे तां सेकंड केस ठीक है। मतलब कि सानू एग्जाम च जेकर 15 आंसर दिता होया तां इस च अपना सेकंड केस ठीक है, फर्स्ट वाला केस भी ठीक है, लेकिन जे एग्जाम च आंसर दिता होया जेकर दोवें दिते होए ने तां कांट डिटरमाइंड आपां उत्थे चूज कर लेंगे, ठीक है जी। लेकिन इस च अपना सेकंड वाला केस भी फॉलो करता है। किवें फॉलो करता है जी वो तुसी देख ही लिया जिस तरह अपना सेकंड वाला केस फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखो जी अपना इन अ रो ऑफ अ पर्सन, इन अ रो ऑफ अ पर्सन, ठीक है जी। इन अ रो ऑफ पर्सन पोजीशन ऑफ P from left hand side of a row is 9th and position of Q from right hand side of a row is 8th, ठीक है जी। if R is sitting just in middle of P and Q and P and position of R from left hand side of the row is 15th, find the total number of person। इस सानू की कढ़ना है जी टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इस सानू कढ़ने ने। तो सब तो पहला देखो जी ये क्वेश्चन किवें प्रोसीड होगा, आपां ये क्वेश्चन प्रोसीड करना है जी। सब तो पहला असीं डायग्राम बनावांगे जी। डायग्राम किवें बनूगा देखो जी, इसदा जेकर असीं अपना केस फर्स्ट दे हिसाब नाल चलिए, ठीक है जी। सब तो पहला असीं केस 1 दे हिसाब नाल चलांगे जी। वो की कह रहे इन रो पर्सन पोजीशन ऑफ P फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रो इज 9th, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड तो कितनी है जी, लेफ्ट हैंड साइड तो P की पोजीशन कितनी है जी 9th है, ठीक है जी। दूजा and the position of Q from right hand side is 8th, position of Q from right hand side is 8th if R is sitting just in middle of P and Q, ठीक है जी। if R है जो वो P and Q दे मिडल च बैठा है, मतलब कि R है जेड़ा वो किते इत्थे बैठा है, ठीक है जी। then position of R from left hand side इज 15th, पोजीशन आर दी किन्नी है जी लेफ्ट हैंड साइड तो आर दी पोजीशन है जी 15वीं। डायग्राम पहला तो समझ आना चाहिए जी, इस दे बेस ते ही साडा क्वेश्चन अगे प्रोसीड होगा, सारा क्वेश्चन अगे इस हिसाब से नाल साडा प्रोसीड होगा जी। डायग्राम जेकर तुहानू समझ आ गया तो क्वेश्चन अगे प्रोसीड आपां कर सकते हैं जी, ठीक है जी। हुण देखो जी डायग्राम च तुसी देखो सब तो पहला लेफ्ट हैंड साइड तो P ਦਾ ਕੀ है जी 9वां है, राइट हैंड साइड तो Q ਦਾ ਕੀ है जी 8वां। R किते मिडल च बैठा है जी P एंड Q दे, R किते बैठा है जी मिडल च P एंड Q दे, ठीक है जी। R दी पोजीशन है जी 15वीं। हुण देखो जी सब तो पहला आपां की करांगे, एहो जो क्वेश्चन है सब तो पहला आपां की करांगे जी 15th है R दी पोजीशन, 15 चो पहला आपां 9 घटा दांगे, 15 चो जेकर आपां 9 घटा दईए तां सानू की पता लग जूगा जी P ते R दे विचकार किन्ने बंदे बैठे ने जी 6, ठीक है जी। P ते R दे विचकार बैठे ने, P ते R दे विचकार किन्ने बंदे बैठे ने 6, 6 चो P एंड R, ठीक है जी दे विचकार किन्ने ने 6, 6 चो आपां एक घटावांगे, मतलब कि टोटल बैठे तां 5 बंदे ने, क्यों क्योंकि R तां आपां उस च गिनना ही नहीं, जेकर 6 बैठे ने R तां नैगलैक्ट करना पऊगा ना इस चों, ते मतलब कि 5 बंदे बैठे ने P ते R दे विचकार, P ते R दे विचकार 5 बंदे बैठे ने, ते R ते Q दे विचकार भी किन्ने होणगे फिर 5 बंदे, टोटल किन्ने हो जाणगे जी 10 बंदे, 10 चो एक R भी बैठा है, ठीक है जी। 11 बंदे टोटल की होणगे जी किस दे विचकार होणगे P ते Q दे विचकार होणगे, ठीक है जी। किवें जी देखो 6
6 ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ, मतलब कि इधर भी 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, इधर भी 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10। 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 11 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 11 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਉਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ 9 + 8 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ 11। 11 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਤੇ 8 8 16 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 17 17 ਤੇ 11 28 28 ਆਪਣਾ ਆंसर आ गया केस 1 ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ केस सेकंड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ केस सेकंड ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ठीक है जी 9 + 8 - 11 + 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆंसर ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 17 - 13 that is coming out to be 4। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਆंसर है जो ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 15 ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਚਾਹੇ 8 ਮੰਨ ਲਓ। ठीक है जी ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆंसर ਕੀ ਆਇਆ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ केस सेकंड ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ गलत है। केस 1 अपना की है। ठीक है दोस्तों जेकर तुहानू अज दी वीडियो पसंद आई तो वीडियो नू वध तो वध शेयर करो लाइक करो कमेंट करो ते दोस्तों डेली करंट अफेयर ते डेली जीके क्विज वास्ते ते फ्री मॉक टेस्ट वास्ते तुसी साडे टैलीग्राम ग्रुप पंजाब नॉलेज हब नू ज्वाइन कर सकते हो। टैलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन करने लई लिंक है जो और डिस्क्रिप्शन च दे दिता जाएगा। थैंक यू।